یہ عجیب بات ہے کہ ہومیوپیتھک دواؤں میں جو اوقات ملتے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بعض دعائیں اوقات ہی سے پہچانی جاتی ہیں. اب ملیریا میں اوقات کو بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ملیریا کی علامتیں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں. سب میں سردی، سب میں کانپ کے بخار چڑھے گا، بخار اترے گا تو اکثر پسینہ آتا ہے. تو کس دوا کو میں اب یعنی ان علامتوں سے کون سی دوا ڈھونڈیں گے؟ اس لیے زیادہ تر انحصار ملیریا میں اوقات پر کیا جاتا ہے یا جنرلائزیشن ہے. جو جنرلائزیشن ہے اس میں آرنیکا پریونٹیو کے طور پر بھی، اور بخار ہو چکا ہو تو اس کے دوران جب اترا ہو اس وقت بھی دینے سے بہت فائدہ مند ہے. آرنیکا 1000 میں نے استعمال کروایا ہے اور اللہ کے فضل سے اس کے بہت ہی اچھے نتائج نکلتے ہیں. میں نے ان کو بھی لکھوایا تھا مبلغین کو افریقہ کے کہ وہ آرنیکا مستقل اپنے استعمال میں رکھیں. اور آرسنک 1000 میں بخار دوسرا بخار چڑھنے سے پہلے دے دیا جائے تو بہت مفید ہے. آرسنک کو چھوٹی پوٹینسی میں نے اتنا فائدہ مند نہیں دیکھا. میں بہت پہلے 30 میں بھی بہت استعمال کیا کرتا تھا، وہ خاص فائدہ نہیں دیتا تھا، لیکن 1000 میں بہت جلدی اثر دکھاتا ہے. اور بچوں کے بخاروں میں جن کو سردی لگ گئی ہو، آرسنک 1000 خوراک کے فضل سے ایک ہی خوراک سے وہ بخار وہیں بیٹھ جاتا ہے، اس کو یعنی اس میں کمپلیکیشن پیدا ہوتی نہیں. کیوں سلیم دونوں کو استعمال کیے ہیں؟ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ہاں دیکھیں سلاسط سلیم گھبرایا ہوا آیا تھا کہ میں دوسروں کو دوائیاں کیا دوں، میرے گھر سے SOS آ گیا ہے. ہوش اڑے ہوئے تھے اس کے اور اس وقت پھر یاد نہیں آتی دوائی، حالانکہ اتنے لوگوں کو دیتے. میں کہ آرسنک دیتے ہو لوگوں کو، خود کو نہیں دیتے. 1000 دی، رات صبح تک بخار ختم تھا بالکل. اور بھی بہت سے آج کل تو اکثر بچے جو یہاں آئے ہیں ان کو آرسنک 1000 بس صرف ایک دفعہ، وہ اللہ کے فضل سے بخار کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر موسم میں ضرور کام کرے. اس میں اور کئی دوائیں آپ کو ملیں گی جو بخار اتارنے کے لیے فوراً کام آتی ہیں، لیکن جس قسم کا وائرس کسی موسم میں چل رہا ہو وہاں جو دوا ایک دفعہ کامیاب ہو وہ الا ماشاء اللہ سب مریضوں پر پھر کام آتی ہے، وہ اس ایپیڈیمک کی دوا بن جاتی ہے. تو آج کل میں نے دیکھا ہے کہ آرسنک انگلستان کے بخاروں میں جو اچانک آتے ہیں پہلے علامتیں بھی نہیں ظاہر ہوتی، اسی لیے مجھے پہلے آرسنک کا خیال آیا تھا، ورنہ میں پہلے دوسری دوائیں جو گلے کی خرابی کی انفیکشن دور کرنے والے دیا کرتا تھا کہ کوئی علامت نہیں بتاتے تھے. اچانک بخار ہوا، رات کو ہوا، تو اس نے میری توجہ آرسنک کی طرف پھیری اور اللہ کے فضل سے وہ بالکل تیر بہدف کام کرتا ہے. تو ملیریا میں بھی آرسنک کو بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن اونچی طاقت چھوٹی سے بہتر ہے. اور ملیریا میں کون کون سی دوائیں؟ چائنا ہے اور بہت سی دوائیں ہیں، مگر ان کے اوقات سے پہچانا جاتا ہے. صبح 9 بجے اگر بخار چڑھے تو اس کو عموماً نیٹرمیور فائدہ دیتی ہے، اور اگر رات کو 11 بجے چڑھے تو پھر کون سی ہوگی؟ نہیں، 11 بجے کی کون سی دوا ہے؟ نہیں، رات شام کو سونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے. کیا براؤنیا؟ وہ آپ کے ساتھ وہی بات ہوئی ہے جو میرے ساتھ جو ایک دفعہ پٹھان سے ہوئی تھی. ایک وہ لڑائی ہو رہی تھی، فساد ہو رہے تھے، ہندو مسلم وغیرہ چل رہے تھے نا اس پرانے زمانے میں. تو اس نے ایک ہندو کو پکڑ لیا، اس کو کہا کہ کلمہ پڑھو ورنہ میں ابھی قتل کرتا ہوں. پہلے تو اس نے کافی منتیں کی کہ بس کرو، مجھ سے رہنے دو، نہ پڑھواؤ. تو اس نے کہا سوال ہی نہیں، میں کلمہ پڑھو ورنہ جان گئی. اس نے کہا اچھا پھر بابا پڑھا دو.
शुक्र करो खान को भी कलमा नहीं आता। क्या? नहीं आर्सेनिक नहीं, वो दवाई बेरियम या बिस्मत इस किस्म की कोई दवाई है, इत्तेफाक से मेरे जहन में फिर रही है और याद नहीं आ रही, मैं देख के बताऊंगा। ये ब्रोमियम है, सॉरी याद आ गया, ब्रोमियम की इलामत 11 बजे होती है। और ब्रोमियम की और कोई खास बात है? हाँ, इनलैंड में तकलीफ बढ़ती है, समंदर के किनारे आराम आता है। तो ये दो इसकी खास अलामतें आपके जहन में नक्श रहनी चाहिए। और ऐसा मलेरिया हो या कोई ऐसा बुखार जो वक्त का बहुत पाबंद हो और 11 बजे उधर अलार्म बजा, उधर उसने बुखार ने अपनी हरकत शुरू कर दी, उसमें ब्रोमियम काम आएगी। और मगर एक बात याद रखें, औकात के लिहाज से मलेरिया को तकसीम करके उसका चार्ट बना लें ताकि फिर लंबे झगड़ों में न पड़ें। लेकिन पहले बहरहाल आर्निका और आर्सेनिक को फौकियत देनी चाहिए। और दूसरी बात याद रखें कि जब अभी बुखार ना चढ़ा हो और जिस्म दुखता हो, उस वक्त रस्टाक्स और ब्रायोनिया बारी बारी देना अक्सर सूरतों में मलेरिया से बचा ही लेता है। और अगर मलेरिया क्रॉनिक हो तो उस वक्त भी बुखार, दो बुखारों के दरमियान ब्रायोनिया और रस्टाक्स को आप एक रूटीन नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वक्त वाली जो पहचान है उसके झगड़े में मैं काफ़ी देर पड़ चुका हूँ और बड़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि मलेरिया वक्त भी बदलता रहता है अपने, कभी किसी पर चढ़ गया कभी किसी पर चढ़ गया, और इतना पाबंद नहीं है वक्त का जितना लोग समझते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल पेश आ जाती है। वो दवाएं जो तजुर्बे में आ जाएं उसी को इंसान एतमाद से दे सकता है, और उनमें ये दवाएं जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे तजुर्बे में है। नेटरमियोर बहुत अच्छी दवा है सुबह के बुखार में, लेकिन कभी चढ़ते बुखार में नहीं देनी। बाकी मलेरिया में भी ये एहतियात लाजिम है कि मलेरिया में अगर चढ़ते बुखार में दें तो बाज़ दफ़ा एग्रेवेशन इतनी सख्त हो जाती है कि मरीज के मरने का खतरा पैदा हो जाता है और काम भी नहीं फिर करती। अगर वेट करके झाड़ झूड़ के जिस्म को फिर छोड़ देगी, फिर बुखार हो जाएगा। लेकिन उतरते हुए बुखार में जब आखिरी दमों पर हो उस वक्त दें दवा, और फिर अगले बुखार से पहले पहले जारी रखें। इलामत इस बात की इलामत कि दवा अच्छी है, काम कर रही है, या तो ये है कि अगला बुखार आएगा ही नहीं, या ये कि वो वक्त बदलेगा और पीछे चला जाएगा। अगर उसने 9 बजे आना था तो वो 1 बजे 2 बजे आएगा, और उसका हमला पहले हमले से यकीनन कम होगा, और या फिर वक्त से बहुत पहले आकर अभी एक बुखार उतरा, दरमियान में अपनी दवाई शुरू कर दी, फिर चढ़ गया, एकदम आकर हैरान कर देता है। बाज़ दफ़ा लोग घबरा जाते हैं कि ये हमने क्या दिया, लेकिन उस वक्त दवा बंद कर देनी चाहिए जब बुखार आ जाए। फिर वो टूटेगा, निस्बतन जल्दी टूटेगा, निस्बतन कम तकलीफ दे होगा। फिर दवा दें तो फिर खुदा के फजल से अगला बुखार नहीं आएगा। तो मलेरिया की हैंडलिंग, यानी उसको मलेरिया को इन दवाओं से संभालना बहुत मुश्किल काम है, और मगर एक दफ़ा तजर्बा हो जाए तो बहुत सहूलत पैदा हो जाती है, कोई मुश्किल नज़र नहीं आती। पता कैसे चलेगा मलेरिया बुखार? ये बड़ा मुश्किल का सवाल है। मलेरिया का ये नहीं, आपने तो सादगी में पूछा है, मैंने कह दिया मजाक में, लेकिन मजाक की बात नहीं, वाकईतन बड़ा मुश्किल सवाल है। क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स बास अपने लेक्चर्स में ये कहा करते थे, और हमारे एमडी डॉक्टर जो बने हुए बास सीनियर, उन्होंने मुझे सुनाया कि हमारे ज़माने में डॉ मेडिकल कॉलेज और किंग्स एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर था जो माहिर था मलेरिया का। वो अपने लेक्चर में कहा करता था कि मलेरिया सिवाय हामिला औरत के हर दूसरी चीज की नकल कर सकता है, इतना बदलता है अपना भेस कि कभी इस शक्ल में आएगा, कभी टाइफाइड लगेगा, कभी कुछ और लगेगा, और
नज़ले ज़ुकाम वाली इलामतें भी ज़ाहिर कर लेता है, जगह जगह बैठता है, रूमेटिज्म का बुखार भी बन जाता है मलेरिया। तो इसकी पहचान वैसे मुश्किल है, लेकिन जो दवाएं मैंने आपको बताई हैं ये इसकी पहचान बन जाती हैं। अगर आर्निका दें और आर्सेनिक दें और रेस्टॉक्स और ब्रानिया और फ़ायदा हो तो पक्की बात है कि था मलेरिया, वो भाग गया, निकल गया। और अगर इनसे काबू में ना आए तो एक फ़ायदा ज़रूर हो जाता है होम्योपैथिक से कि उसकी असल शनाख्त लौट आती है और फिर आपके लिए पहचान मुश्किल नहीं। मलेरिया की बुनियादी इलामत क्या है? सख्त सर्दी, तेज़ बुखार, मतली, उल्टी वगैरह, सर दर्द, ये सब कुछ बुखार में होता है। फिर बुखार टूटना शुरू होता है और पसीना आकर कुछ देर के लिए आराम आ जाता है और उस वक्त लगता है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर, यानी ऐसा बुखार जो दो हमलों के दरमियान बदन को बिल्कुल छोड़ देता है। उसके बाद जब दूसरा हमला आए फिर वही इलामतें असर नौ शुरू, वही मतली, बुखार के आगाज में सख्त सर्दी, फिर इतनी तपश के कपड़ा भी नहीं लिया जाता और उल्टी के साथ साथ सर दर्द बढ़ती जाती है और इसका हर अगला हमला पहले हमले से ज़्यादा शदीद होता है और बिल्कुल जिस्म बेजान हो जाता है। फिर अगर इंसान ना मरे तो कुछ देर के बाद ये छोड़ देता है, पता नहीं अब खुद छोड़ता है या कुनीने खिला खिला कर लोग पीछा छुड़ाते हैं। मगर वो जो मॉडर्न दवाएं हैं, रेसोचीन वगैरह और नेवर्क्विन वगैरह, ये सारी बद असर रखती हैं। ये तो मेरे तजुर्बे में है। इनसे बाज़ दफ़ा तो सख्त किस्म की एलर्जी पैदा होती है जिल्द में, बाज़ दफ़ा गुर्दों पर बुरा असर पड़ जाता है। मुख्तलिफ दवाओं में आजकल लिटरेचर में लिखने भी लग गए हैं वो कि इसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा, इसका ये होगा। तो वो तरीक़े इलाज इस लिहाज से तो अहम है कि मरते हुए मरीज़ के लिए वो लाजिम हो जाता है। जब तक होम्योपैथ को ऐसी दवा न मिले जिससे वो बीमारी को देख कर संभाल सके, उस वक्त तो उसका ये हक नहीं है कि वो एलोपैथी के खिलाफ लेक्चर दे के गए कि बिल्कुल ना जाना, इसके बुरे नुकसान होंगे। वो मौत से बुरा और क्या नुकसान होगा। तो अगर होम्योपैथी के हाथों में मरना ही है बेचारे ने, तो बेहतर है कि एलोपैथी के हाथों से कुछ खुजली कर करके रह जाए बाकी। इसलिए ये जो तस्सुबात है ना, ये मौलवीपन, ये हर जगह जालिमाना हरकत है। वाक़यात को लेना चाहिए। किसी से अगर कोई चीज़ काबू नहीं आती तो ना कह दे मरीज को कि तुम मेरे बस के नहीं रहे, खुदा के लिए कहीं और जाओ। तो एलोपैथिक में ये फ़ायदा ज़रूर है कि मलेरिया की ऐसी दवाएं निकल चुकी हैं कि इल्ला माशाल्लाह मरीज़ हाथ से निकलता नहीं, टीके देकर और उस करके वो संभाल लेते हैं एक दफ़ा। फिर वो विटामिन भी उनको पता कौन कौन सी साथ देनी है। तो होम्योपैथिक में अक्सर लोगों को विटामिन की मदद का तजर्बा नहीं है या ख्याल भी नहीं जाता और बाज़ दवाओं में उसकी ज़रूरत पड़ती है बड़ी सख्त। तो अब होम्योपैथिक जो बुखार की बातें थी, मलेरिया की काफ़ी हो गई। अब आगे बात चलाऊं?